Hello then, I'm Dr. Preeti. Can you introduce yourself from where you are, which city you belong to? Are you working or working? So can you if you are able to hear me? Right. Hello, a very good evening today. First time, not a first time, COVID time, I had a one class on Rorschach test, and this was not a class, this was a 3 days workshop and about the about the Rorschach test. So Rorschach test, everybody knows that how the Rorschach test is so powerful in our psychological field and the clinical psychological field is a kind of a king of the other test, and which gives the diagnostic evaluation and the diagnostic evaluation as well as the personality and emotional functioning of the person. And this test was devised by Hermann Rorschach in 1921, though there were the many other psychologists were there, but in our psychological field, we accepted him as a, very important, his uh, ink blot, profile of the plates were mm, uh, were more and more reliable than the other in-lot test. So, I first of all, I just wanted to introduce there are the three psychologists, and they were very much famous in this field. Those who have given the interpretation on this test. So, number one is as already I have told you, that is he is author. You say he was a like he developed this test, but because of he couldn't survive in 2021, he developed this test, but 2022, and he was expired. And because of his incomplete work, many like a psychologist and many other authors came up with the interpretation of this test. And those authors were Clover was there, Exner was there, and the Petrovsky was there. They're the three authors they came up. So where I am using the back interpretation, Samuel Beck interpretation, and this interpretation is quite easy. And it came up in the 1954 and 1945 to 1954. अब ये रोशाक टेस्ट के बारे में आप लोग क्या जानना चाहते हैं? What do you want to know about the Rorschach test? Rorschach test, as a Rorschach test, is a projective test, which everybody knows it. And projection, everybody knows, like all of you know, what is the meaning of projection. What we project in this test, what are the cards are given here. So there are the 10 cards. 10 cards are there, and where the 5 cards are the chromatic cards and 5 cards are the achromatic cards. Chromatic cards, which is a colored cards, and colored card plus like a semi-colored cards, you would say, where the achromatic and chromatic. Those who are shading cards are called as a achromatic. Those who are colored cards are called as a chromatic. So, card second and card third, card 8, 9th, and 10th, these 5 cards are called as a chromatic cards. And card number 1, card number 4, card number 6, card number 7, and card number 7. Yeah. So these are the cards are known as a achromatic cards. And now these cards have a symbolization. These cards have a symbolization. Card number 1 is known as a reality card. Card number 1, let me show you card number 1. This is a card number 1. And card number 1 is known as a reality card and is also the situational card. So symbol of the reality, symbol of the situational. And all cards have the symbolization. So this is the card number 1, which is known as a
a sim reality card. I think so. You must be knowing cards the significance. And then after that, I am going to tell you how the card is going to display and how you are going to do the interpretation part. Card ka size, is 18 to 24. This is a cm, centimeter. So 18 centimeter to 24. This is the 18 centimeter. This is the 24 centimeter. There are the 10 plates are there, and these 10 plates is called as an unstructured test. And this test is an unstructured test, or like you can say uh, that semi structured test, जिसमें कि कार्ड स्याही के धब्बे जैसे बने हुए होते हैं। और इन कार्ड्स का जो सिग्निफिकेंस जैसा मैं बता रही थी, कार्ड नंबर सेकंड इज इट्स नोन एज अ कलर कार्ड्स आल्सो, कलर शॉक आल्सो एंड द मूवमेंट शॉक आल्सो। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि कलर्स भी इसमें दिए हुए हैं और मूवमेंट जैसा भी दिख रहा है। तो मूवमेंट शॉक एंड कलर शॉक दोनों शॉक के लेवल पे पेशेंट या क्लाइंट इसको परसीव कर सकता है। और दिस इज नोन एज ए second card. Second card is a color card shock as well as the movement shock. And card number 3, and this is a card number 3. It is also chromatic and achromatic, called as a chromatic. ये कार्ड जो है इस कार्ड को कहते हैं इंटरपर्सनल कार्ड as well as the reality card also, and the card number 3. And card number 4 is completely achromatic card. So achromatic card is a father card and authoritative card. So you can see like seems to be authoritative card. And card number 5 is again is a reality card. This is card number 5 is complete achromatic card. And card number 6. So card number 6, you can see the card number 6 is a phallic card, is a sex card where the client is going to have some kind of the patient is going to see. So you can identify the area of the phallic or area of the sex. And now card number 7. Card number 7. So card number 7 is a mother card. And this is also called a shading card, a chromatic card, mother card, as well as this card is known as a what card? As a mother reality card. And card number 8. Card number 8 again is a color shock cards, totally, absolutely complete color cards. So complete color cards, it means you are going to see the client's emotions on this card, the reflection of emotion on this card. And there's a card number 9. Card number 9, there's a low low anxiety tolerance card. This is also color cards, but it is a neurotic card. This is known as a neurotic card. And card number 10 is an organizational card and low frustration tolerance card. So these are the cards where have a significance of these each and every plates. So now the symbolization and significance of each and every card, you have seen it. And after that, how you are going to like what the instruction you are going to give, and the position where the client is going to sit. So, and this is not like a webinar kind, this is like interactive. So if anyone wants to say that what are the instructions you are going to give the client and how the patient is going to place or going to sit, is a nearby or the in front of. So who's going to come and tell? So right position is you have to there's a one hand, at least this much distance has to be there, or the across of the table the client has to sit, or either the right side of you where you are sitting, the right side the placement of the right side of yours. So the client can sit, and so that you can see the location and everything where from where to where the patient is going to see and what the patient is saying and in what way the patient is saying. Now the second, because this is the introductory part, and now coming to the second part. Second part में आप क्या देखने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? तो second part में आप उसको instructions देने जा रहे हैं. Instructions like now you are the preparation of the conducting the Rorschach test.
It is very important when you are going to conduct the Rorschach test. So none of the family members has to sit over there. Even those who are like observant, those students are sitting around you when you are doing the test, so they has to be shadow, not in front of them. Two, not more than two interns or the psychology students. So whosoever like they are not allowed to sit when you are conducting this test. This is very important. And rapport building is very important, and test behavior is very important, because the test behavior you are going to count when you are doing this test. So now the second part, what I'm going to say is, this is a like instructions, what instructions you are going to give the client. So you are going to give the client, हम एक आपके ऊपर एक जांच करने जा रहे हैं या एक टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे, एक एक करके 10 प्लेट्स होंगी, और हर एक चित्र में जो भी बना हुआ होगा उसमें आपको देखकर बताना होगा कि इसमें क्या दिख रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी आपका सही नहीं है। नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ प्री एसोसिएशन, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, first time in your mind is very important. You can say and you can share, because you are free to speak. आप इसको कैसे भी देख सकते हैं और क्या भी देख सकते हैं। ये आपका इंस्ट्रक्शंस होगा। और टाइम का इसमें ड्यूरेशन आपको नोट करना होगा। फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन टाइम, जैसे कार्ड आपने दिखाया तो कार्ड दिखाने के आपको उसमें फर्स्ट रिएक्शन टाइम दिखाना लिखना होगा। एंड एंड ऑफ द लाइक अ टेस्ट, एंड ऑफ द फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, जितने भी कार्ड्स का है, तो फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन टाइम एंड द लास्ट रिएक्शन टाइम, stop watch you have to keep ready. Now the phone is there with the stopwatch is already there in the phone, so you can on your stopwatch and you can record the timing, because each and everything is very important to observe and to note it down. Patient जो बताता जा रहा है वो आप उसपे as a verbatim नोट करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज द टेकिंग रेस्पॉन्स। So after taking response in each and every card, what the patient is saying? तो जैसे कि for example आपका card number 1 है, where the card number 1 has come. Yes. Suppose the card number, this is the card number 1. The card number 1 है, so you are going to display in this manner. Not you have to display in this manner, not you have to display in this manner. This you have to display in this manner, but this is the client's choice whether he is going to see or she is going to see in this manner or going to see in this manner. So this is the kind of location. So you are going to note it down the location, how and how the patient is observing. So if the patient is observing in that way, so you have to mention in your notebook the patient that is a symbol of this. So symbol you can use in that way. Let me see the board. New whiteboard. Let me see whether I'm able to use it or not. Let me see. Yes. The symbol. Oh. Slot. Not able to see. Sorry. तो यू कैन आप ऐसे करके आप मेंशन इन करके कर सकते हैं। तो ऑल रेस्पॉन्सेज, जितने भी आपने रेस्पॉन्सेज आपने नोट किए हुए हैं, उन रेस्पॉन्सेज को नोट करने के बाद आपका आ जाता है लोकेशन आ गया, टाइमिंग आ गया, नंबर ऑफ कार्ड्स आ गए, नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज आ गए। अब ये सारे रेस्पॉन्सेज आने के बाद अब आता है आपका इंटरप्रिटेशन, हाउ यू आर गोइंग टू डू द इंटरप्रिटेशन पार्ट। So interpretation part, you are going to do the four like a properties with the four properties. So four properties are like a location, number 1, and number 2 is a determinant, and number 3 is a content, and number 4 is a software responses. So location L, D, C, T. So there are the 4 columns जो कि हमें बनाना होता है, the 4 columns, and 4 columns में आप लोकेशन को आप आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन लोकेशन डिटरमिनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन कंटेंट, एंड देन पॉपुलर। सो लाइक फॉर कार्ड नंबर 1,
So card number 1 and yes, after this, sorry, I forgotten. After like taking all responses, the second part is start with the inquiry. So inquiry of each and every cards you are going to ask कि क्यों दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है. So for that you have to show the location chart. I think so. Everybody is firstly knowing. This is the location chart. So this is a location chart here. So like after like a few other people, what they do, all like are doing all showing or displaying all 10 cards, taking all responses from the 10 cards. Then they are going to show one by one from the first card and then second card and third card. And few other people after like displaying one plate and then taking all the responses, and after that they ask for the inquiry. So depending upon like your choice. But the thing is this, all displaying all 10 cards, and then you are going to ask ask about the inquiry of each and every card. जैसा कि 1 से 10 तक सारा हमने दिखा दिए कार्ड्स, उनके रेस्पॉन्सेस ले लिए. रेस्पॉन्सेस लेने के बाद हमने फिर से स्टार्ट किया कार्ड नंबर 1 से और हमने इंक्वायरी लेनी शुरू की. तो इंक्वायरी में आपको बहुत केयरफुल होना है. इंक्वायरी में आपको पूछना है कि रेस्पॉन्स कहाँ से कहाँ था और कैसे कितना दिख रहा है. तो जैसा जैसा वो बताता जाता है आपको उसको आइडेंटिफाई करके उसको आपको इस यहाँ पे नोट करना होता है जहाँ पर आपका ये फिगर बना हुआ है. तो आफ्टर टेकिंग ऑल इंक्वायरी, इंक्वायरी हैज अ वैल्यू. इंक्वायरी हैज अ वैल्यू when you are going to do the like a interpretation or when you are going to do scoring. So ये आपका पूरा like all 10 cards आप एक cards में सभी उसकी इंक्वायरी आप लेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको बैट दिख रहा है तो आप इसमें पूछने जा रहे हैं बैट कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है. सपोज उसने बोला बैट दिखा, तो बैट आपने पूछना है कि कहाँ से कहाँ तक. तो फ्यू ऑफ पीपल आर सेइंग द बैट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है बिकॉज ऑफ द विंग्स एंड दिस इज द पिक्चर. तो बैट दिख रहा है. And few of the people saying that this the whole picture is a bat. So like a bat उसने भी देखा, bat उसने भी देखा, लेकिन उसने bat केवल यहाँ से यहाँ से देखा और उसने कहा ये विंग्स है और ये उसका फेस है, ये सामने एंटीना, ये बैट दिख रहा है. किसी ने कहा कि पूरा बैट दिख रहा है. पूरा बैट क्यों दिख रहा है? उड़ता हुआ पूरा बैट दिख रहा है. सो लाइक टू पीपल बट दे हैव सीन इन अ डिफरेंट एंगल. When they have seen a different angle, so you have to like write it down, and then this is going to like a when you are doing the interpretation or scoring, वो उसमें आप उसको ऐड करने जा रहे हैं. अब इसको कैसे अब किस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करने के लिए आप कौन सा सिस्टम यूज करने जा रहे हैं. तो वी हैव लाइक अ 3 मैनुअल्स. मैनुअल नंबर 1, मैनुअल नंबर 2, मैनुअल नंबर 3. जैसा कि हम यहाँ पे यूज करते हैं बैक का मैनुअल. तो बैक के मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन में लोकेशन जैसे बैट आपने देखा तो उसपे विंग्स दिया हुआ है और इधर एनिमल और मॉथ जैसे बहुत सारी चीजें बताने का मन कर रहा है लेकिन हम सीक्वेंस में चलते हैं कि एक नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल प्रोटोकॉल में WD, DDS, DS ये नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी को देखा जाता है. अगर उसने W देखा है, W के बाद D देखा है, फिर आपको DS देखा है या DD देखा है या DS देखा है, वो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है. लेकिन अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया है कि DD से स्टार्ट किया है या DS से स्टार्ट किया है या S से स्टार्ट किया है फिर W पर आया है, तो इट मीन्स वो भी एक आपको इंटरप्रिटेशन में गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो ये आप समझ रहे होंगे DS एंड DD और DDS इन दैट वे आप उसको आप उसको समझ रहे हैं. राइट. अब इसके बाद आ जाता है कि जैसे कि आपने देखा कि लोकेशन आके करता क्या है, व्हाट द लोकेशन tells about it. So location basically refers to how much of the inkblot was used to answer to perceive the response. It indicates how the examining approaches to the environment. कैसे वो environment को perceive कर रहा है और perceive वही करता है जो उसके मन के अंदर होता है, जिस तरह से वो perceive करना चाहता है. Particularly the ambiguities or the vagueness pertaining to it without answering why. सो लाइक जैसा कि बताया कि कुछ जैसे कि ये आपका हो गया लोकेशन में. अब लोकेशन के बाद हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं. तो डिटर्मिनेंट्स में हम फर्स्ट कार्ड के बारे में बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की जब बात करते हैं, डिटर्मिनेंट में हमारा आ जाता है लोकेशन की हाउ क्वालिफाई, कितना वो
एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज ओरिजिनलिटी कितनी है, जो लोकेशन वो देख रहा है उसकी ओरिजिनलिटी कितनी है, और कितने लेवल पे वो, कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं बढ़ रही है। तो लाइक स्कोरिंग सिस्टम में इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो अभी जैसे उसने देखा कि यहाँ पर, कि उसने सिंपल देखा कि ये एक बैट लग रहा है, तो आपका मैनुअल यूज करेंगे। मैनुअल में आपका दिया होगा कि ये इतना पार्ट वाकई उसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इसमें आ जाता है, फॉर्म से शुरू होता है, एफ से शुरू होता है। फॉर्म, जिसको एफ प्लस कहते हैं, एफ माइनस कहते हैं, एफ कहते हैं, एंड देन आफ्टर एफ के बाद फिर उसकी क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्सेज आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ रेस्पॉन्सेज आ जाते हैं। एडजेक्टिव और रेस्पॉन्सेज में आ जाता है कलर्ड रेस्पॉन्स, शेडिंग रेस्पॉन्स, विस्टा रेस्पॉन्स, टेक्सचर रेस्पॉन्स, मूवमेंट रेस्पॉन्स। So there are the five categories. What are the five categories here? Are there number one, F response, and F का quality of response or organization capacity of response, whether it is a, it has a complexity or it doesn't have the complexity. It has a like a normal perception, or it has a some distortion in perception. तो ये आप इस तरह से आप देखते हैं, तो उसमें आपका, जैसे उसने बताया कि ये बैट दिख रहा है, सिंपल एग्जांपल। अब ये क्यों दिख रहा है, तो उसने कहा विंग्स के कारण दिख रहा है। द विंग्स इज अ शेप, विंग्स इज अ शेप, और शेप को एफ से आइडेंटिफाई किया गया है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू you are going to use the manual, and when the manual there is a coding is there, so the picture is there, the coding is there, and you are going to identify manual with the coding. तो उसमें आपने देखा होगा इतना इतना उस I right now I have this book. Just a second, number one. So the areas are like this kind of the coding. These are the codings are there. You can see if you have the like a booklet. तो आप उस बुकलेट के थ्रू आप वो कोडिंग को देख सकते हैं कि ये एरिया D1 आता है, बिकॉज इट इज नॉट अ होल रेस्पॉन्स। ये D1 आता है या D2 आता है, अकॉर्डिंगली उसमें आपके उसमें आपके लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। फिर लोकेशन का एफ रेस्पॉन्स आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि ये आपने विंग्स बताया है। और अगर उसने कहा उड़ता हुआ दिख रहा है या उड़ता हुआ, तो उड़ते हुए में एम आपको आइडेंटिफाई, एम उसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका ये पूरा का पूरा बैट दिख रहा है, या यूं करके हम देखते हैं, ऐसे करके ऐसे उसने अगर देखा है और उसने कहा ये बटरफ्लाई दिख रहा है, तो रिवर्स इज अ बटरफ्लाई। तो जैसा आप देखते उसमें दिखता जाएगा, वैसे आप नोट करते जाएंगे और उसको उससे आइडेंटिफाई करते जाएंगे कोड करके, कि वो बटरफ्लाई जैसा है या बटरफ्लाई जैसा नहीं है। तो अगर वो होगा तो उस पे एफ प्लस देते जाएंगे, और अगर नहीं भी है, और if it is resembling like a butterfly, then you can you can ask from the 2-3 person those who are sitting around you कि वो ऐसा बटरफ्लाई जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर वो कहेंगे नहीं लग रहा है, तो you can put into the F or either the F minus if it is a very vague from the reality। तो ये आपको उस तरह से दे सकते हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम इसको इस तरह से फर्स्ट पार्ट को ही हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसमें कुछ कहते कहते हैं कि दीज आर द लाइक, ये तो बटरफ्लाई लग रहा है, बैट लग रहा है, बट बैट की बड़ी बड़ी आंखें हैं। दिस आंखें हैं, तो जैसे कि आपको आंखें हैं, तो आंखों को क्या आप देख रहे हैं, ये दिस आर द एरिया, द स्पेस एरिया सीम्स टू बी आईज। तो एक ये हो गया डी रेस्पॉन्स हो गया, बल्कि डी नहीं DS रेस्पॉन्स हुआ, और DS रेस्पॉन्स हुआ। एंड DS रेस्पॉन्स किस नंबर पे आता है, किस कोड पे आता है, if eyes are there, तो you have to write the detail of the whether F response or F minus response, so seems to be F minus। कभी अब इसने दो आंखों की वजह से ये ऐसा लग रहा है कि ये दो आंखें इस साइड है, दो आंखें ये साइड है, फिर भी ये पूरी तरह से बैट लग रहा है। तो ये यानी कि स्मॉल डिटेल से आपका W रेस्पॉन्स हो गया, या कभी कभी ये बिज़ायर रेस्पॉन्स में भी आ जाता है। तो लाइक आप उसको उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो DS रेस्पॉन्स हो गया। और फिर इसको अगर उड़ता हुआ है, या ये अ, इस तरह से अगर बोलता है कि उड़ता हुआ की जगह पे अगर वो कुछ यहाँ पर एक स्टोन पर ये बैठा हुआ है,
किसी स्टोन पर बैठा हुआ है, अब ये बैठा हुआ तो पूरी तरह से ही बैक के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका मूवमेंट रेस्पॉन्स। तो एम रेस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल लाइक एफ रेस्पॉन्स है, तो एफ रेस्पॉन्स के साथ एफ वाई हो सकता है, एफ सी हो सकता है, एफ बी हो सकता है, एफ टी हो सकता है, और साथ साथ में आपका एफ प्लस हो सकता है। इसी के हिसाब से वाई एफ हो सकता है, वाई सी एफ हो सकता है, एम एफ हो सकता है, और वी एफ हो सकता है, और टी एफ हो सकता है। तो ऑल लाइक सिग्निफिकेंस और क्वालिटीज विद द एफ। तो एफ डोमिनेंट हो सकता है या एफ नॉन डोमिनेंट हो सकता है, वाई डोमिनेंट हो सकता है, वाई नॉन डोमिनेंट हो सकता है, सी डोमिनेंट हो सकता है, सी नॉन डोमिनेंट हो सकता है, टी डोमिनेंट हो सकता है, टी नॉन डोमिनेंट हो सकता है, वी डोमिनेंट हो सकता है, वी नॉन डोमिनेंट हो सकता है, एम डोमिनेंट हो सकता है, एम नॉन डोमिनेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ द पेशेंट इज परसीविंग और हाउ द पेशेंट इज गिविंग इंक्वायरी। So you are going to see the determinant part, determinants parts में आपके ये determinants आ जाते हैं, that's a qualifying the location and the organization। तो उसमें विस्टा क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, आपका मूवमेंट क्या होता है, और प्लस आपका और क्या बचा, कलर क्या रेस्पॉन्स होते हैं। तो कलर में क्रूड सी भी होता है, कलर रेस्पॉन्सेस जैसे कलर का एक होता है कंसील कलर रेस्पॉन्स, होता है क्रूड कलर रेस्पॉन्स। तो क्रूड कलर जैसे एग्जांपल नंबर 2, कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 में आप देख रहे हैं, कार्ड नंबर 2 में आपका ये जो दिख रहा है, इसमें फ्लावर दिख रहा है, या दो जोकर्स हैं, और दो जोकर हैं, डांस करते हुए लग रहे हैं, और साथ में ये इनको चोट लग गई और खून बह रहा है। अगर ये रेस्पॉन्स दिया, डांस कर रहे हैं, चोट लग गई है तो कौन, तो जोकर है, डांस कर रहे हैं, तो एम रेस्पॉन्स हो गया, एफ एम हो गया। डांस कर रहे हैं, फेसली फोकस है, तो एम एफ रेस्पॉन्स हो गया। खून बह रहा है तो खून सी रेस्पॉन्स हो गया, बह रहा है तो मूवमेंट रेस्पॉन्स हो गया, सी एम रेस्पॉन्स हो गया, एफ सी एम रेस्पॉन्स हो गया। तो एफ भी है, सी भी है, एम भी है। नाउ यू हैव टू सी वेदर इट इज a F plus response, F minus response. So human response is a F plus response, animal response is a F plus response. So with F plus response, you are going to write this the color response and movement response. जैसा कि मैंने बताया crude C होता है, तो crude से bread response is given the crude C. तो crude C को जो कि प्योर C होता है, crude C means a pure C. जैसे उसने कहता कि फ्लावर्स हैं, फ्लावर लगे हुए हैं, तो फ्लावर्स इज नॉट ए प्योर सी, इट इज नॉट ए फ्रूट सी, बिकॉज फ्लावर उसने देखा, फ्लावर मीन्स फॉर्म देखा है, लेकिन फ्लावर क्यों लग रहा है, व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क इन ड्यूरिंग द इंक्वायरी, द क्लाइंट इज गोइंग टू से दैट कि बिकॉज ऑफ इसमें रंग लगे हुए हैं, तो ये रंग तो फ्लावर के होते हैं। तो फ्लावर, तो नाउ यू आर गोइंग टू राइट, रंग बाद में बताया, और पहले उसने क्या बताया, आपको फॉर्म बताया। तो फॉर्म में आपने क्या रखा, आपने फॉर्म को आपने क्या पहले रखा, पहले रखा, एंड उसको कलर को आपने बाद में रखा, तो एफ एम रेस्पॉन्स आपने उसको रखा। सो नाउ दिस इज द वे यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड सी। Similarly, like a Vista response, if I say कि Vista response किसे कहते हैं, what the Vista response is the third dimensional response। अब third dimensional response क्या होता है, three dimensional response क्या होता है, आप लोग बताइए, three dimensional response क्या होता है। Yeah, Dr. PT, you are there, so you can speak three dimensional response क्या होता है, what is the three dimensional response। अगर आप लोग भी बताते जाएंगे तो थोड़ा आई विल फील कि हाँ आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और इट वुड बी गुड। यस, एनीबडी एल्स, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स इफ यू इन दिस फील्ड, नो प्रॉब्लम। ये थ्री डायमेंशनल रेस्पॉन्स वो होता है, थर्ड डायमेंशनल होता है कि वो तीनों तरह से उसको वो चीज दिख रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कार्ड नंबर 3, हम कार्ड नंबर 3 पे आते हैं, तो कार्ड नंबर 3 में वो पेशेंट चाइल्ड कहता है कि ये दो कार्टून है, दो कार्टून है, यहाँ पे नीचे में पानी है, पानी से घड़े घड़े में पानी भर रहे हैं। तो और आसपास ये बादल हैं, तो आसपास बादल हैं, घड़े में पानी भर रहे हैं, और पानी नीचे है। दो कार्टून हैं, तो कार्टून हो गया, घड़ा हो गया, पानी हो गया। सो
भर भी रहे हैं, तो मूवमेंट रेस्पॉन्स भी हो गया आपका, आपका विस्टा रेस्पॉन्स भी हो गया, बिकॉज थ्री एरियाज फ्रॉम द थ्री एरिया, थ्री डायमेंशंस के लेवल पे वो पेशेंट देख रहा है, तो ये विस्टा भी हो गया, साथ में मूवमेंट रेस्पॉन्स भी हो गया और फॉर्म रेस्पॉन्स भी हो गया। तो आप विस्टा रेस्पॉन्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे पेशेंट कहता है रॉक, ये रॉक है, ये रॉक है, और रॉक के ऊपर में कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो ये रॉक अगर है तो रॉक भी एक थ्री डायमेंशनल रेस्पॉन्स माना जाता है। तो विस्टा रेस्पॉन्स। टेक्सचर रेस्पॉन्स क्या होता है? व्हाट इज द टेक्सचर रेस्पॉन्स? टेक्सचर रेस्पॉन्स में जैसे फील होता है कि योर फील द सेंसेशन ऑफ फीलिंग, जो आप फील कर रहे हैं, तो फीलिंग के लिए टेक्सचर रेस्पॉन्स में, जैसे कि इसमें आपको फील हो रहा है कि ये जो ये घड़ा है, सपोज घड़ा है, घड़े से पानी भर रहा है, और उसको उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पानी, घड़े का पानी उससे गिर जाएगा। तो उसको फीलिंग हो रही है कि घड़ा पानी भर रहा है और ऐसा लग रहा है पानी गिर जाएगा या बह जाएगा। तो ये फीलिंग टेक्सचर फीलिंग महसूस हो रही है। तो वेन एवर यू फील लाइक द क्लाइंट फील्स फीलिंग ऑफ टच, तो फीलिंग ऑफ टच, तो उसको फीलिंग ऑफ टेक्सचर, उसको टेक्सचर में रखते हैं। तो टेक्सचर हो गया, विस्टा हो गया, कलर हो गया, और साथ साथ में मूवमेंट रेस्पॉन्स हो गया। सो ऑल लाइक अ डिटर्मिनेंट पार्ट इज नाउ गोइंग टू बी ओवर। सो अब आता है कि ह्यूमन मूवमेंट रेस्पॉन्स है, एनिमल मूवमेंट रेस्पॉन्स है, या एनिमेट रेस्पॉन्स है, या इनएनिमेट रेस्पॉन्सेस है। मूवमेंट रेस्पॉन्सेस में किस प्रकार के रेस्पॉन्सेस हैं, और वो किस प्रकार के रेस्पॉन्सेस, कैसे आप उसे कहाँ पर किस कैटेगरी में रखने जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स एनिमल रेस्पॉन्सेस, ह्यूमन रेस्पॉन्सेस विद द मूवमेंट रेस्पॉन्सेस वेरी क्लियर, ये हमारे ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। इट shows the high intellectual level अगर वो F प्लस के रेस्पॉन्स के साथ होता है। So F plus response and movement response, color response, and the W response and Poplar response. If these are the responses is going to align with the total number of responses, so वो आपके हाई इंटेलेक्चुअल लेवल को इंडिकेट करता है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज कितने नॉर्मल होते हैं, कितने नॉर्मल नहीं होते हैं, ये भी थोड़ा सा आपसे बता देते हैं। सो नाउ there is a categorization, वो हम आपको दिखाए, इसमें दिखाने जा रहे हैं। I don't know whether you are going to see it or not, and I have this, but I did not much prepare for that, how to like I give you this and share with you. So this is the like you can see, आप लोगों को दिख रहा होगा, and there's a table is there, where the table is, I have just made it the part of the determinant, that is a F minus, and then FC, then CF, then C, then FY plus FY plus FY minus, then YF, then Y, VF plus, VF minus, then V minus and plus, FT plus, FT minus, and TF, and then FM plus, F minus, MY, M, and BM, and TM. And this way, like you are going to categorize and you are going to give the coding. And then what I'm going to tell you about this, coming to the popular responses, हम कार्ड एक को ही लेकर अगर चलते हैं, तो now you are going to see the whether the this response is the popular response is there or not. Popular means होता है social conformity. If the client is giving the popular responses, it means the patient, the client has a social conformity with the situation. So if the popular responses, number of the popular responses find less, so it means the patient doesn't have the social conformity, or maybe it going towards the conduct disorder, or maybe something else. So अब इसमें उसने बैट देखा, तो बैट को बिकॉज आई थिंक सो डॉक्टर प्रीति तो जानते ही होंगे, एंड आस्था और रविंदर का आई डोंट नो फ्रॉम विच बैकग्राउंड दे आर। देयर इज अ बुकलेट जिसमें कि पॉपुलर रेस्पॉन्सेज दिए हुए हैं, और पॉपुलर रेस्पॉन्सेज की लिस्ट दी हुई है कार्ड नंबर 1 टू कार्ड नंबर 10, where you can identify the where the popular response. So popular response में इसमें bat is given as a popular response, moth is given the popular response, animal picture और animal figure is given the popular response. तो यहाँ पे आपने popular response भी आपने दे दिया, popular response दे दिया, F plus response दे दिया, फिर आपने कंटेंट को, कंटेंट भी अब थर्ड करके आपकी कैटेगरी आती है कंटेंट। हाँ, आपको डिटर्मिनेंट्स बता दिया मैंने आपको,
लोकेशन बता दिया, एंड नंबर 3 कैटेगरी इज द कंटेंट एनालिसिस. Content analysis is also like as a important, and what the client is going to perceive, of course it is going to give the meaning of content. वो content कोई identify कर रहा होता है. तो कंटेंट इज लाइक एनिमल को एक से कहेंगे, अगर रॉक देखा है तो वो आपको लैंडस्केप से कहेंगे, अगर ट्री देखा है तो ऑफ कोर्स इट इज बॉटनी को बॉटनी से आइडेंटिफाई करेंगे. अगर उसने क्या रेस्पॉन्स ब्लड रेस्पॉन्स देखा है तो BL ब्लड रेस्पॉन्स से देखेंगे, एनाटमी रेस्पॉन्स से आइडेंटिफाई करेंगे. तो देयर द लिस्ट ऑफ द कंटेंट वेयर यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई what are the like a content the patient has seen is. Content reveals the mental furniture is the subject and the source of knowledge concerning his or her personal needs, interest in interaction and about his various preoccupations. Content क्या बताता है? अब बेसिकली कंटेंट जो बताता है नॉलेज है उससे रिलेटेड, या उसकी पर्सनल नीड्स हैं, या उसके इंटरेस्ट हैं, या उसके इंटरेक्शंस विद द वेरियस सिचुएशंस है, या वेरियस प्री ऑक्यूपेशंस हैं. तो उसके प्री ऑक्यूपेशन को रिफ्लेक्ट करता है कंटेंट. सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंटेंट्स. कुछ लोग वैरायटी ऑफ कंटेंट्स देखते हैं, कुछ लोग वेरी फ्यू कंटेंट देखते हैं, कुछ लोग पर्सिवरेटिव एक ही स्टीरियोटाइपिक कंटेंट देखते हैं, एक ही तरह का कंटेंट देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एज ऑलरेडी सेड कि हाउ द क्लाइंट has their preoccupation or had the like with the previous experiences or their interest and needs. So content level पे आ जाता है. So now there are the four categorizations of four parameters. One is a L, second is a D, third is a content, and fourth is a popular response. So L means location, D means determinant, C means content, 4 means popular responses, all depending upon the four parameters. Now you have to identify, you have to like you have to do the analysis part. So analysis part करते वक्त हमें number of the total responses देखने होते हैं, total responses कितने हैं. Sequential approach हमें देखनी होती है, sequential approach क्या है उसकी. अब टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस में कोई 2 रेस्पॉन्सेस देता है, कोई 3 रेस्पॉन्सेस देता है, कोई 5 देता है, कोई एक ही कार्ड में 10 रेस्पॉन्सेस होते हैं. सपोज इफ आई आस्क 10 रेस्पॉन्स एंड 15 रेस्पॉन्स इन अ वन सिंगल कार्ड द पेशेंट इज गिविंग, द क्लाइंट इज गिविंग, तो व्हाट कुड बी द इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन क्या होगा उसका? इफ ओनली वन रेस्पॉन्स इज गिविंग, इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इफ देयर इज रिजेक्शन ऑफ द कार्ड, तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा? व्हाट विल द इंटरप्रिटेशन? if the patient, if you are going to show this picture और patient says कि मुझे इस पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे इस पे कुछ भी नहीं दिख रहा, वो रिजेक्ट कर देता है, तो what you are going, how you are going to interpret. So there are the interpretation ways. अगर each and every steps what the client is doing. अगर patient इसको reject कर देता है, it means this is the first card, this is a situational card, और situation card को उसने अगर reject कर दिया, it means a severe conflict with the situation right word. आप उस पेशेंट का उसके साथ सीवियर जबरदस्त रियलिटी कांटेक्ट से कुछ ना कुछ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, और जिस एरिया में हमें एक ही रेस्पॉन्स से और एक ही कार्ड दिखाने से उसकी सारी सिचुएशन के बारे में हम पता कर ले जाते हैं, और वो एक्सप्लोरेशन में बहुत काउंसलिंग के दौरान बहुत मदद करता है, और से ये भी पता चल जाता है वो किस डायग्नोस्टिक कैटेगरी की ओर वो बढ़ रहा है, whether the neurotic, whether the psychotic, or whether like a personality disorders or some other disorders. तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ द रेस्पॉन्सेस आपको देखना होता है, टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस. टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस इन कार्ड in the Rorschach test is 23 to 25 responses. My time when I was getting study, मैं जब पढ़ रही थी उससे 35 responses को माना जाता था कि ये number of the responses is 35 is the average responses. लेकिन आज के समय में पेशेंट्स और क्लाइंट्स इतने रेस्पॉन्सेस देखते ही नहीं है, बहुत ज्यादा 15 to 20 रेस्पॉन्सेस, और बहुत ज्यादा देखते हैं 20 to 25 रेस्पॉन्सेस. तो 23 to 25 रेस्पॉन्सेस नॉर्मल रेस्पॉन्सेस, एवरेज रेस्पॉन्सेस होता है. एंड देयर इज अ सिक्वेंशियल अप्रोच एंड इनसिक्वेंशियल अप्रोच. तो सिक्वेंशियल अप्रोच में मैंने आपको बताया था, ये भी काउंट किया होता है. सिक्वेंशियल अप्रोच होता है कि डब्ल्यू रेस्पॉन्स पहले उसको देखना चाहिए, फिर डी रेस्पॉन्स देखना चाहिए, फिर एस रेस्पॉन्स देखना चाहिए, फिर डी रेस्पॉन्स देखना चाहिए, फिर डी एस रेस्पॉन्स देखना चाहिए. तो डब्ल्यू डी एस एंड देन डी एंड देन डी एंड देन डी एस. तो इस तरह के रेस्पॉन्स दिखना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वी हैव टू इंटरप्रेट इन दैट मैनर. तो अगर सपोज ये कार्ड नंबर 1 है और कार्ड नंबर 1 में डब्ल्यू रेस्पॉन्स देखा है, दिस ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज फेयर.
एंड अगर डी रेस्पॉन्स भी देखा है तो डी रेस्पॉन्स इज ऑल्सो शोइंग द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस समटाइम्स एसोसिएटेड रेस्पॉन्स भी होता है। एसोसिएटेड रेस्पॉन्स दो इट इज नॉट ए डबल रेस्पॉन्स, लेकिन अगर वो कहेगा कि दो लोग हैं, साइड से दो लोग हैं और किसी को लेकर के ये उड़ रहे हैं, सपोज अगर ऐसा कहता है तो ये एसोसिएटेड रेस्पॉन्स होता है। एसोसिएटेड रेस्पॉन्स भी ये सेपरेट रेस्पॉन्स भी, डी रेस्पॉन्स भी, डी रेस्पॉन्स भी है, लेकिन डी डब्ल्यू रेस्पॉन्स बन रहा है, डी से डब्ल्यू बन रहा है, तो उसको एज अ डब्ल्यू रेस्पॉन्स में ही हम उसको कंसिडर करेंगे। तो ये भी आपका सिक्वेंशियल अप्रोच में आ जाता है। लेकिन हमने ये देखा है बहुत से क्लाइंट्स जो है सिक्वेंशियल अप्रोच में नहीं जाते, इन सिक्वेंशियल अप्रोच पे जाना शुरू कर देते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि इन सिक्वेंशियल अप्रोच अगर उनकी जा रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द देयर परसेप्शन, तो परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस इज देयर, और मे बी disturbance in their thought process is also there. So thought process disturbance and the perceptual disturbance, both disturbances you can identify by considering there is a what kind of the approach is there. तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ कि सपोज आपके ये क्लाइंट को आपने कार्ड देखा और क्लाइंट ने कहा कि ये जो है यहाँ पर इस टाइप का ये उसका सिर है, ये झांक रहा है, छोटा सा ये झांक रहा है। अब यहाँ पर ये आधा धड़ दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। अच्छा और क्या देख रहे हो? अच्छा और देखने के लिए, अच्छा ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ये शायद या ब्लड के हो सकते हैं, या मान लो ऐसे उसने बताया। तो ये एब्सोल्युटली क्या हो गया, थॉट डिस्टर्बेंस हो गया, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस हो गया। उसने अवॉइड किया पूरी डब्ल्यू रेस्पॉन्स को, अवॉइड किया डी रेस्पॉन्स को, एंड उसने क्या देखा, डी डी रेस्पॉन्स देखा। इट मीन्स द क्लाइंट इज गोइंग टुवर्ड्स द, आप समझ सकते हैं, क्लाइंट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल सी, दिस क्लाइंट इज गोइंग टुवर्ड्स द away from normalcy, could be turning to the psychosis, could be turning to schizophrenia, or could be turning into delusional, whatever the diagnosis could be, depending upon all 10 responses and all 10 cards, and then the history and the clinical like MSc. So not only the single Rorschach test के लेवल पे ही हम लाइक डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं। डायग्नोसिस हमारा क्लिनिकल हिस्ट्री एंड द एमएससी एंड देन द रोशार्क टेस्ट, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक पेशेंट की डायग्नोसिस, क्लाइंट की डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो अभी हमने क्या बताया आपको, पॉपुलर रिस्पॉन्स के बारे में बताया कि टोटल सिक्वेंशियल अप्रोच चलता है, और सिक्वेंशियल अप्रोच में ये भी बता दिया डब्ल्यू एंड डी एस एंड एस रेस्पॉन्स, डी डी रेस्पॉन्स, डी डी एस रेस्पॉन्स। एंड आफ्टर दैट फिर हम किस में आकर हमें क्या करना होता है कि एफ प्लस रेस्पॉन्स देखने होते हैं। तो नंबर ऑफ एफ प्लस रेस्पॉन्सेस ईच एंड एवरी card, you are going to identify whether the card whether response is F plus response or F minus response or F response. So you have to see the F plus responses if it is there, so how many number of responses, तो उसका आपका एवरेज निकालना होता है, then the percentage निकालना होता है, और उसका एक फॉर्मूला होता है F plus total number of response upon F plus upon F plus bracket close, then plus F minus, then bracket close, and then plus, and then F response into 100. So this is the formula of F plus percentage. वो F plus percentage निकालते हैं, और F plus percentage अगर हमारा 65 to 75% आता है, that is the average F plus percentage which we require for the normal patients. If the F plus percentage is going down or going less than this 65 to 75%, then it means the patient is going towards the like maybe psychosis or maybe some other disturbances. तो उसके formulas होते हैं। अब इसमें फॉर्मूले के एफ प्लस परसेंटेज निकाला, फिर उसके बाद कलर रेस्पॉन्सेज निकालते हैं, कलर के परसेंटेज भी निकालते हैं। तो कलर का रेस्पॉन्सेज का 3C=2M होता है, तो उसका एक रेशियो बनाया जाता है, और टोटल नंबर ऑफ सी रेस्पॉन्सेज, टोटल नंबर ऑफ वाई रेस्पॉन्सेज, टोटल नंबर ऑफ एम रेस्पॉन्सेज, और उसके परसेंटेज निकाले जाते हैं। और फिर साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि कार्ड जितने भी शेडिंग कार्ड्स हैं और जितने भी कलर कार्ड्स हैं, शेडिंग कार्ड्स के अलग रिएक्शन टाइम्स नोट किए जाते हैं और कलर कार्ड्स के अलग रिएक्शन टाइम नोट किए जाते हैं, उनके डिफरेंसेस किए जाते हैं कि शेडिंग कार्ड्स में कितना उसने रिएक्शन टाइम लिया और कलर कार्ड में कितना रिएक्शन टाइम लिया। अगर शेडिंग कार्ड्स के रिएक्शन टाइम वो डिलेड रिएक्शन टाइम होते हैं और कलर कार्ड्स के लेस रिएक्शन टाइम अगर लिए हुए होते हैं, इट मीन्स कि अगर रिएक्शन टाइम उसने डिलेड शेडिंग कार्ड्स में लिए हैं, हाई रिएक्शन टाइम उसमें शेडिंग कार्ड्स में और लेस रिएक्शन टाइम, लो रिएक्शन टाइम
उसने आपको कलर कार्ड्स में लिए हैं, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू आइडेंटिफाई विद सम मूड डिस्टर्बेंस और मूड डिसऑर्डर। सो डिलेड रेस्पॉन्सेज शेडिंग कार्ड्स में इट मीन्स डिप्रेसिव हो सकता है, और अगर डिलेड रेस्पॉन्सेज कलर कार्ड्स में है तो भी डिप्रेसिव हो सकता है। लेकिन अगर रिएक्शन टाइम, लो रिएक्शन टाइम आपके कलर कार्ड्स में है, तो इसमें से कि सिजोफ्रेनिक भी हो सकता है। सिजोफ्रेनिक रेस्पॉन्सेज जो होते हैं वो कलर कार्ड्स में कम समय लेते हैं, और सिजोफ्रेनिक जो पेशेंट्स होते हैं वो शेडिंग कार्ड्स में ज्यादा समय लेते हैं, और उनके साथ साथ वो एस्थेटिक रेस्पॉन्सेज भी साथ साथ चलते हैं। तो केवल रेस्पॉन्सेज के आधार से ही इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ एडजेक्टिव्स और एस्थेटिक्स और फेबुलाइजेशन, ये फेबुलाइज रेस्पॉन्सेज भी हम उसमें काउंट करते हैं। तो ये आपका इंटरप्रिटेशंस का जो है एक प्रकार से तरीका हुआ कि परसेंटेज निकालते हैं सभी चीज़ों का। एनिमल का भी परसेंटेज निकालते हैं, लामडा इफेक्ट भी निकालते हैं, जैसे कि ईगो स्ट्रेंथ पता चलता है। वो सारे के सारे, आज तो मैंने सिंपल एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा। अगर आप लोग आगे चाहते हैं तो वी कैन हैव द लाइक अ सेशंस द नेक्स्ट टाइम। अब ये बताता क्या है, जैसे कि सिंपल अगर हम आपसे अगर पूछते हैं कि शेडिंग रेस्पॉन्स क्या बताता है, कलर रेस्पॉन्स क्या बताता है, मूवमेंट रेस्पॉन्स क्या बताता है, एफ रेस्पॉन्स तो मैंने बता दिया कि एफ प्लस रेस्पॉन्स की रियलिटी ओरिएंटेशन बताता है। लेकिन अगर हम शेडिंग रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये क्या बताता है? सी रेस्पॉन्स क्या बताता है? हाई सी है और लो वाई है, और हाई वाई है तो लो सी है, तो व्हाट इज गोइंग टू इंडिकेट? सो सी रेस्पॉन्स और कलर रेस्पॉन्सेस इमोशनलिटी बताता है। अगर हाई रेस्पॉन्सेस सी का है तो यूफोरिया बताता है, जैसे यूफोरिया और हाई इमोशनलिटी रेस्पॉन्स बताता है। एम रेस्पॉन्सेस अगर हाई है, एफ प्लस के साथ हाई है, इट मीन्स क्रिएटिविटी बताता है। अगर उसके एफ प्लस रेस्पॉन्सेस के साथ नहीं है और मोमेंट रेस्पॉन्सेस इज देयर, इट मीन्स उसकी फैंटासाइज थिंकिंग बताता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ वो कॉम्बाइंड हो रहा है। एम रेस्पॉन्सेस फैंटेसी लाइफ बताता है, अगर माइनस के साथ है। प्लस के साथ मैंने आपको बताया कि आपको क्या बताता है। एंड लामडा इफेक्ट निकालते हैं एफ प्लस, प्लस, एम प्लस एंड सी प्लस एंड डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू रेस्पॉन्स, टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यू रेस्पॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एफ प्लस रेस्पॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम रेस्पॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सी रेस्पॉन्स कितने हैं, इन तीनों को टोटल करके अपॉन 100 करते हैं। अगर वो परसेंटेज अगर 0 to 0.5 to 1 के लेवल पे आता है तो ईगो स्ट्रेंथ उसका नॉर्मल होता है। अगर उसे हाई आता है या लो आता है तो ईगो स्ट्रेंथ उसका नॉर्मल नहीं माना जाता है। विस्टा रेस्पॉन्स क्या शो करता है? व्हाट इज द विस्टा रेस्पॉन्स इज इंडिकेटिंग? अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बता सकते हैं व्हाट द विस्टा रेस्पॉन्स इज इंडिकेटिंग। विस्टा रेस्पॉन्स है आपका फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी और इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। द विस्टा number of the vista responses is high, it means the person, the client is a highly like a fearful, extreme fearful about a situation, about a person, about the object, whatever the object is। तो insecurity एक करता है feeling of inadequacy को indicate करता है। वाई रेस्पॉन्स जो शेडिंग रेस्पॉन्स है वो आपको एंजाइटी और डिप्रेसिव साइड को इंडिकेट करता है। जैसे उसने वाटर देखा तो वाटर, उसने रेस्पॉन्स देखा ना, वाटर से घड़ा पानी भर रहा है, पानी है घड़ा भर रहा है, तो ये वाटर रेस्पॉन्स शेडिंग रेस्पॉन्स में आएगा। वाइट रेस्पॉन्स है तो शेडिंग रेस्पॉन्स में आ जाएगा। ब्लड रेस्पॉन्स जैसे बताया तो कलर रेस्पॉन्स में आएगा। और वो हर एक के इंडिकेशन है कि अगर ब्लड रेस्पॉन्स देखता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाटर है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फायर है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ईच एंड एवरी लाइक कंटेंट्स हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, और वो उसको हम काउंट करते हैं डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन में। तो स्पेस रेस्पॉन्स क्या शो करता है? स्पेस रेस्पॉन्स क्या शो करता है? इफ एनीबडी एनी ऑफ आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं स्पेस रेस्पॉन्स क्या शो करता है? स्पेस रेस्पॉन्स शो करता है सस्पिशियसनेस, डाउटफुल थिंकिंग। सो इफ द नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज इज देयर, हाई number of space responses is there, it means the client is a doubtful or if the f min with the minus space response is there, it means suspicious। तो पर्सिक्यूटरी की ओर जा रहा है, पैरानोइया की ओर जा रहा है क्लाइंट। तो ये इस चीज को आइडेंटिफाई करता है। तो स्पेस रेस्पॉन्सेस आइडेंटिफाई द सस्पिशन एंड डाउटफुलनेस। एंड ये सारा मैंने आपको बता दिया। वाई रेस्पॉन्सेस बता दिया डिस्फोरिया को। सो लाइक
कलर रेस्पॉन्सेस हाई इमोशनलिटी को बताता है, यूफोरिया को बताता है। वाई रेस्पॉन्सेस आपको शेडिंग रेस्पॉन्स कहलाता है और ये आपको डिस्फोरिया को बताता है। एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। एम रेस्पॉन्स प्लस के साथ है, क्रिएटिविटी को करता है, माइनस का साथ है तो फेंटासाइज करता है। वी रेस्पॉन्सेस है, थ्री डायमेंशनल रेस्पॉन्स है, नीड फॉर लव एंड अफेक्शन चाहता है और इनसिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी शो करता है। इनर एम्प्टीनेस शो करता है। स्पेस रेस्पॉन्स आपका सस्पिशन शो करता है, डाउटफुलनेस शो करता है। इस प्रकार से रेस्पॉन्सेस क्या क्या इंडिकेट करते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेशन है उनके, ये मैंने आपको बता दिए। अब इनके जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज निकाली जाती है, जैसे डब्ल्यू रेस्पॉन्स को या जेड होल डब्ल्यू रेस्पॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यू रेस्पॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एफ प्लस रेस्पॉन्स कितने हैं, क्योंकि एफ प्लस परसेंटेज निकाला जाता है। एंड देन उसके बाद आपका आ जाता है कि रेस्पॉन्सेज का नेचर ऑफ द रेस्पॉन्सेज। ये नेचर ऑफ रेस्पॉन्सेज में आपका आ जाता है स्टीरियो टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेज हैं, पर्जिवेटिव टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेज हैं, डिविएंट वर्बलाइजेशंस हैं, कन्फबुलेशंस ऑफ द रेस्पॉन्सेज हैं, कंटमिनेशन ऑफ द रेस्पॉन्सेज हैं, और लाइक there's a perplexity in the responses हैं, and poor form level of responses, and what else, and these are the responses. Bizarre responses हैं, these are the responses, and personal references, response the personal references हैं, stereotype of responses हैं. The nature of the responses also I think is accountable on the Rorschach diagnostic interpretation. तो ये इंटरप्रिटेशन करते वक्त इनके नेचर्स को भी हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वी हैव नीड टू लाइक फॉर्मुलेट द perception of the client, whether the perception the like a accurate perception or inaccurate perception. So और ये जो डब्ल्यू रेस्पॉन्स है, इसको जेड स्कोर्स भी कहते हैं। ये अगर ये टोटल ऑर्गेनाइज रेस्पॉन्सेस होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी बोलते हैं। एंड देयर द अदर सिस्टम ऑफ द क्लास इंटरप्रिटेशन, वो जो कि मैं आपको अभी आज तो नहीं बताने वाली। और इफेक्टिव रेशियो को इंडिकेट करते हैं कि इफेक्टिव रेशियो कैसे इंडिकेट करते हैं, तो उसको इफेक्टिव रेशियो का भी फार्मूला होता है। उस इफेक्टिव रेशियो का जो फार्मूला होता है वो कार्ड सिग्मा टोटल नंबर रेस्पॉन्सेस मीन्स होते हैं, एंड कार्ड 8 9 10 कार्ड 8 9 10 के रेस्पॉन्सेस कितने हैं उनको नोट किया जाता है। कार्ड नंबर 8 में कितने रेस्पॉन्सेस हैं, कार्ड नंबर 9 पे कितने रेस्पॉन्सेस, कार्ड नंबर 10 पे कितने रेस्पॉन्सेस हैं, एंड इज इक्वल टू sigma r, यानी sigma r means total number responses, and from card number 1 to card number 6 7th, तो वो आपके शेडिंग रेस्पॉन्सेस हो गए। तो आपको उससे पता चलता है कि उसका इफेक्टिव रेशियो कितना है। तो इफेक्टिव रेशियो के थ्रू हम पता करते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है, इमोशनल हाई इमोशनलिटी है या इमोशनल मैच्योरिटी है, इमोशनल बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस नहीं है। तो ओवरऑल जो है सिंपल जो एरियाज हैं जहाँ हमें कवर करना होता है, वो मैंने आपको एरियाज बता दिए कि क्या क्या चीजें खास होती हैं। इफेक्टिव रेशियो, लैम्डा इफेक्ट, एंड द कलर एंड मूवमेंट का कॉम्बिनेशन, एज वेल एज डब्ल्यू रेस्पॉन्सेज, पॉपुलर रेस्पॉन्सेज, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर रेस्पॉन्सेज कितने हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और टोटल नंबर डब्ल्यू रेस्पॉन्सेज कितने हैं, एफ प्लस रेस्पॉन्सेज कितने हैं, प्लस परसेंटेज रेस्पॉन्सेज कितने हैं, एंड वी रेस्पॉन्सेज कितने हैं, टी रेस्पॉन्सेज कितने हैं। तो टी रेस्पॉन्सेज का सिग्निफिकेंस, टेक्सचर रेस्पॉन्स का सिग्निफिकेंस होता है नीड फॉर लव एंड सपोर्ट। टेक्सचर रेस्पॉन्स का सिग्निफिकेंस होता है जो शायद रह गया था, विस्टा का मैंने बता दिया था, इनफर्टी एंड इनडेकेसी। कलर शॉक है और शेडिंग शॉक है, तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। कलर शॉक है, इट मीन्स कि उसका प्रॉब्लम कलर के साथ है, इट मीन्स वो डिप्रेशन में है और क्योंकि इसलिए कलर शॉक है। और अगर शेडिंग शॉक है तो भी एंजाइटी का पेशेंट होगा तो उसको शेडिंग शॉक होगा, यानी कि उस कार्ड में या तो डिफिकल्टी इन परसीविंग होगा या पेशेंट परसीव ही नहीं कर पाएगा। तो ये आपको मैंने रेस्पॉन्सेस इतने लेवल पे रेस्पॉन्सेस आपको आई जस्ट शेयर विद यू। अगर आप लोगों को इतने में से अगर आपको पूछना है, क्योंकि आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल ऑफ लाइक ए परसेंटेज, व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ लाइक of the F plus percentage, the color percentage and other like a lambda and all, तो वो हम आपको next time I can tell you, और आपको हम अच्छे से बता सकते हैं। कंटेंट कितने प्रकार के कंटेंट होते हैं,
और साथ में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी होते हैं, डिप्रेशन में किस प्रकार के रेस्पॉन्सेस होने चाहिए, मैनिया में कैसे रेस्पॉन्सेस होने चाहिए, सिजोफ्रेनिया में किस प्रकार के रेस्पॉन्सेस होने चाहिए, सारी जितनी कैटेगराइजेशन ऑफ द डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव में कितने कौन कौन से रेस्पॉन्सेस होने चाहिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्या क्या रेस्पॉन्सेस होने चाहिए, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में किस प्रकार के रेस्पॉन्सेस होने चाहिए, किस प्रकार के रेस्पॉन्सेस होते हैं। तो एवरी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक कैटेगरीज दे हैव द इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर ओन ऑन द रोशाक लेवल। तो उस रोशाक की किस लेवल पे कौन सी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हम सिग्निफाई कर पा रहे हैं, उसके अनुसार हम उनकी डायग्नोसिस बनाते हैं, और डायग्नोसिस बना करके हमें रखना होता है कि ये कैटेगरी है सिजोफ्रेनिया की, और रोशाक में ये फीचर्स आ रहे हैं। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की ये कैटेगरी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आ रहा है, या एंजाइटी में आ रहा है, या बॉर्डरलाइन में आ रहा है, या आपका डिसोसिएटिव में आ रहा है, या फोबिया में आ रहा है, या सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स में आ रहा है। तो ये डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन एज अ क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्सेज, जिसमें कि हमने आपको बताया फेबुलाइज्ड रेस्पॉन्सेज होते हैं, और साथ ही साथ पर्सनल रेफरेंसेस होते हैं, जिसके लेवल पे इंटरप्रिटेशन करके और हम पूरा का पूरा उसको इन रोशाक का डायग्नोस्टिक कैलकुलेशन करके डायग्नोसिस बनाते हैं। So this is what today's like a class on the Rorschach test. Though I tried the second time, COVID time पे मैंने जैसे मैंने बताया था, मैंने लिया था और काफी डिटेल में लिया था, और बहुत ही अच्छा सेशन गया था। अभी मैंने सोचा कि एक बार फिर से जरा सा आई ट्राई, क्योंकि रोशाक पे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि रोशाक ये में कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है, किस तरह से उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है, हर एक रेस्पॉन्सेस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कार्ड परसेप्शन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और ऑलरेडी यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो गया कि क्या क्या चीजों का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि रविंद्र को मैं जब से मैंने ऑन किया है तब से रविंद्र इज देयर एंड जय इज देयर, एंड यू कैन like tell about you, can say about you, because I'm seeing you first time in this class. आप लोग कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, और किस क्लास के हैं? Want to open your identification or not? Hello. तो ठीक है, आई होप सो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर ना पसंद आया तो भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मुझे आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया। और अगर समझ में आया तो कितना समझ में आया, तो अगर आप अनम्यूट करके बोलना नहीं चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में एटलीस्ट डाल सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। जय और रविंदर, यस, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जय? रविंदर, yes, wanted to say something? नो? ठीक है, तो फिर आज का हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच दैट आप आए हमारे सेशन में, और जितना भी हमने आपको बताया, ये बहुत बड़ी चीजें बताई हैं, और छोटी बातें नहीं बताई हैं। ये शायद लोगों ने अटेंड किया या नहीं अटेंड किया, जो भी रीजन है, लेकिन हमारी इस क्लास से बहुत लोग बहुत सी चीजें पाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल में जो जिन्होंने पढ़ाई की है वही ये सारी चीजों को बता सकते हैं। अदरवाइज केवल सिंपल तरीके बताते हैं कि क्या रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इतनी डिटेल्स में कोई भी शेयर नहीं करता जितनी डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। और अगर मेरी आगे आवाज आ रही है ना? आपको तो आगे और भी बेहतर तरीके से एक एक रिस्पॉन्स की डिटेल में हम इंटरप्रिटेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस के सारी फीचर्स को हम डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं। सो आई थिंक सो टुडे सेशन इज गुड, फाइन फ्रॉम माय साइड। हेलो। We also हेलो। have learned something. Wish you all the best. Good night.